Assalamualaikum guys, hope so you're well. So today we are going to discuss about the Jacobean era. As earlier on we already have discussed four literary periods: the Anglo-Saxon period, the medieval period, the Renaissance period, and Elizabethan period. If you guys haven't watched those videos, I will provide a link in the description so you can also watch. So let's move on to the today's lecture, which is on Jacobean era. So here is the table of content that we are going to discuss today. First of all, we will discuss introduction, then notable works, characteristics, and then literary innovations, impact on society, comparative analysis, influence, and at the end, the significance of this literary period. So let's start with an introduction. The Jacobean era. The Jacobean era refers to the reign of King James I of England from 603 to 625. Jacobean era जो था ना वो किंग जेम्स फर्स्ट जो इंग्लैंड के 603 से 625 के से स्टार्ट होता है, ठीक है। इस पीरियड में जो एलिजाबेथन की तरह ना सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल, रिलीजियस और कल्चरल चेंजेस आए। जैकोबियन एरा में थिएट्रिकल और लिटरेरी फाउंडेशंस जो थी वो फ्लोरिश्ड हुई, एक न्यू स्टाइल से उसमें न्यू थीम्स आई और वर्ल्ड व्यू का इम्पैक्ट भी आया जैकोबियन एरा में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इस पीरियड को डिटेल से डिस्कस करेंगे जिससे आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नोटेबल वर्क्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास नोटेबल वर्क्स में आता है मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। दिस प्ले रिवॉल्व्स अराउंड द सेंट्रल कैरेक्टर मैकबेथ, अ स्कॉटिश जनरल एंड हिज एम्बिशियस क्वेस्ट फॉर पावर। ये जो प्ले है ये एक सेंट्रल कैरेक्टर थे मैकबेथ जो एक स्कॉटिश जनरल थे, ठीक है, और उसकी एम्बिशन थी पावर हासिल करना, ठीक है। The narrative explores the psychological and moral consequences of unchecked ambition and corrupting influence of power. इसमें वो पावर यानी कि हासिल करता है वो करप्शन के जरिए से, ठीक है, और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स को डिस्कस किया गया है। ये एक ट्रेजेडी थी जिसमें थीम्स थी वो एम्बिशन की थी, पावर की थी और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ गिल्ट की थी। So this novel is all about the psychological impact, power and ambition. Okay, next we have The Alchemist by Ben Jonson. It's a satirical comedy written by Ben Jonson in 1610. The play is set in London and follows the exploits of three co-artists, Subtle Face and Dol Common. इसमें तीन आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, Subtle Face और Dol Common, who pose as alchemists to exploit the greed and gullibility of their victims. Each character in the play represents a different facet of society and the narrative unfolds as a series of comically absurd and deceitful events. Absurd कहते हैं मीनिंगलेस टॉक को, ठीक है, और deceitful कहते हैं डिसेप्शन, डिसीव करना, ठीक है। Themes of greed. The play explores the themes of greed as characters are willing in the hope of gaining wealth through alchemical means. इसमें जो मेन कैरेक्टर्स थे ना ग्रीडी थे, ठीक है, और उनका मेन कंसर्न था वो दौलत हासिल करना, डिसीट। द एंटायर प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड द डिसेप्शन परपेट्रेटेड बाय द सेंट्रल कैरेक्टर्स रिवीलिंग द डिसऑनेस्टी प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी। मींस कि इसमें सोसाइटी में डिसऑनेस्टी को एक्सप्लोर किया गया है, उसके साथ ग्रीडी को एक्सप्लोर किया गया है। अब एक चीज याद रखें कि जो लिटरेचर होता है ना वो सोसाइटी का मिरर होता है, उस सोसाइटी में जो चल रहा होता है वही लिटरेचर उसका अक्स बनता है, ठीक है। तो उस सोसाइटी में उस वक्त डिसऑनेस्टी थी, ग्रीड थी, उसके बाद पावर हासिल करना था लोगों का मेन एम। तो उसी के लिहाज से जो राइटर्स थे उन्होंने इस तरह का लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस किया। ओके, नेक्स्ट वी हैव द डचेस ऑफ मेल्फी बाय जॉन वेबस्टर। It's a Jacobean tragedy written by John Webster around 1612 to 1614. The play is set in the court of Italy and revolves around the tragic story of Duchess, a widow who defies social norms by secretly marrying her steward. The narrative explores themes of love, power and corruption, depicting the destructive consequences of political intrigue and betrayal. Means to say कि इसमें भी ना हमारे पास जो थीम्स थी वो करप्शन डिपिक्टिंग की थी, ग्रीड की थी, ठीक है, और पावर की थी। तो वही बात है कि सोसाइटी में जो उस वक्त जो चल रहा था वो करप्शन थी, उसके बाद पावर थी, उसके बाद डिपिक्टिंग डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस थी और डिसेप्शन चल रही थी। तो उसी के लिहाज से जो लिटरेचर उस वक्त प्रोड्यूस हो रहा था। सो नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस लिटरेरी पीरियड। The first one is darker themes. The Jacobean era literature often embraced darker themes, exploring human flaws, political intrigue, and moral ambiguity. The works of Jacobean literature marked by tragedy and the exploration of human psyche. इसमें डार्कर थीम्स थी जैसा कि ह्यूमन के फ्लॉज, ठीक है, और ह्यूमन साइकी को
एलेबोरेट किया गया, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल थिंक, लोगों का थिंकिंग लेवल किस तरह का है। द राइटर्स वर इंटरेस्टेड इन द नॉट सो हैप्पी पार्ट्स ऑफ लाइफ एंड देयर स्टोरीज शोड ऑडियंसेस आर कैप्टिवेटिंग बट समटाइम्स अनसेटलिंग लुक एट व्हाट लाइफ कैन बी लाइक। मीन्स कि रियलिस्टिक जो थे ना इवेंट्स, उनको नरेट डाउन किया जा रहा था स्टोरीज में, ठीक है, और लिटरेचर में। मीन्स कि जो स्टोरीज जो थी वो रियलिटी बेस पे थी, फिक्शनल नहीं थी। वन नोटेबल एग्जांपल ऑफ जैकोबियन लिटरेचर दैट एम्बॉडीज डार्कर थीम्स इज विलियम शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ। अब मैकबेथ में भी जो है वो डार्कर थीम्स यूज की गई हैं। राइटर ने जो है ना वो डार्कर साइड ऑफ ह्यूमन थॉट्स और अंडरस्टैंड द मोरल चैलेंजेस दैट कम विद एम्बिशन एंड पॉलिटिकल गेम्स। मैकबेथ में ना जैकोबियन एरा के दौरान जो राइटर्स ने डार्कर साइड्स ऑफ ह्यूमन थॉट्स को एक्सप्लोर किया है और जो चैलेंजेस, जो मोरल चैलेंजेस जो इंसान फेस डाउन करता है उसको एक्सप्लोर किया है। नेक्स्ट वी हैव हाइटन्ड रियलिज्म। ड्यूरिंग द जैकोबियन एरा लिटरेचर एग्जिबिटेड हाइटन्ड रियलिज्म बाय प्रेजेंटिंग कैरेक्टर्स विद मोर इंट्रिकेट एंड लाइफ लाइक क्वालिटीज मिररिंग द इवॉल्विंग सोशल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द लाइफ। इसमें जो स्टोरीज थी ना वो रियल थी, जिसमें कैरेक्टर्स जो है वो रियल इंसिडेंट जो लाइफ में रोजमर्रा की जिंदगी में हमें रूनमा होते हैं ना, उनको नरेट डाउन किया गया था स्टोरीज के थ्रू। तो ये जो है ये स्टोरीज ऑडियंस में काफी पॉपुलराइज हुई, ठीक है, काफी पॉपुलर हुई और लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ क्योंकि ये रियलिटी पे बेस थी, फिक्शनल नहीं थी, ठीक है। Another such as John Webster and Thomas Middleton sought to capture the complexity of human nature and psychological depth. Social and political commentary. In the Jacobean era, books and plays talked about how things were going in society and politics. They showed the troubles and changes of life. इसमें जो बुक्स और प्लेस थी वो टोटली जो सोसाइटी और पॉलिटिक्स में जो चल रहा था ना उसी पे बेस कर रही थी। टाइम में जो चेंजेस आ रही थी वो ही बुक्स में, ये लिटरेरी वर्क राइट डाउन किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन बेन जॉनसन्स प्ले Walpole, he made fun of how greedy and corrupt people could be. John Webster's play, The Duchess of Malfi, also looked at power and corruption, showing how things were not going well in politics. So these stories were not just for fun; they also told people what was wrong with society and politics back then. इसमें एक एग्जांपल है कि बेन जॉनसन ने जो प्ले था ना वॉलपोन, उसमें उसने एक फनी वे में ग्रीडी और करप्ट पीपल की तरफ यानी कि एक अटेंशन दिलवाई है। और जॉन वेबस्टर का जो प्ले था द डचेस ऑफ मेल्फी, उसमें भी पावर और करप्शन के एलिमेंट्स को डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो मेन तो है कि उस वक्त सोसाइटी में और पॉलिटिक्स में करप्शन आम थी और लोग पावर की तरफ थे, उनका ट्रेंड पावर की तरफ था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है लिटरेरी इनोवेशंस। रिवेंज ट्रेजेडी। The Jacobean era witnessed the popularity of the revenge tragedy, a sub-genre of drama that explores themes of revenge, justice, and moral corruption. इसमें जो लिटरेरी इनोवेशन हुई है वो रिवेंज ट्रेजेडी की हुई है। जैसे कि रिवेंज ट्रेजेडी को ना विलियम शेक्सपियर के प्ले राइट्स और जैसे थॉमस कीड हो गया, जॉन वेबस्टर हो गया और अदर कंटेम्परेरीज जो थे उस टाइम के, उनके साथ रिलेट किया जाता है। एक फेमस जो ट्रेजेडी है रिवेंज ट्रेजेडी जो जैकोबियन एरा में थी वो विलियम शेक्सपियर का हैमलेट था। उस प्ले में ना प्रिंस हैमलेट जो है फादर का जो मर्डर हो गया था उसका रिवेंज लेता है, ठीक है, लीडिंग टू अ कॉम्प्लेक्स एक्सप्लोरेशन ऑफ जस्टिस, मोरालिटी एंड साइकोलॉजिकल टोल ऑफ वेंगेनेंस। The character's internal struggle, the intricate plot, and the themes of moral corruption are characteristic of the revenge of tragedy genre during the Jacobean period. तो हैमलेट में जो है ना वो रिवेंज की थीम फ्लोर होती है, उसके साथ जस्टिस है, मोरालिटी है और साइकोलॉजिकल टोल जो थे वो थीम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेजेडी प्लस कॉमेडी, ठीक है। ये भी जैकोबियन एरा में काफी प्रोमिनेंट थी। इसमें दिस प्ले सीमलेसली ब्लेंड सीरियस एंड लाइट हार्टेड एलिमेंट्स क्रिएटिंग अ यूनिक एंड ऑफन अनप्रेडिक्टेबल इमोशनल एक्सपीरियंसेस फॉर द ऑडियंस। ये जो ट्रेजिक कॉमेडी थी ना इसने भी ऑडियंस में एक इमोशनल एक्सपीरियंस भी दिया, ठीक है, और प्लस कॉमेडी भी फैसिनेट की इनके साथ। A notable example of Jacobean tragicomedy is John Webster's The Duchess of Malfi. Duchess of Malfi में भी ट्रेजिक कॉमेडी यूज की गई है, जैसा कि प्ले में ट्रेजिक एलिमेंट्स हैं, पॉलिटिकल इंट्रीग है, उसके बाद बेट्रियल है और डेथ, और एट सम पॉइंट्स इसमें डार्कर ह्यूमर और आयरनी का भी यूज किया गया है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट ट्रेजिक कॉमेडी। नेक्स्ट वी हैव इन्फ्लुएंस। बाकी लिटरेरी वर्क्स का जो है वो जैकोबियन एरा पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ा। इन द टाइम आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ कॉल्ड द जैकोबियन एरा, राइटर्स केप्ट मेकिंग स्टोरीज विद कॉम्प्लिकेटेड पीपल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज लाइक दे डिड बिफोर। द स्टोरीज वर स्टिल वेरी इमोशनल एंड हैड अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स जस्ट लाइक इन शेक्सपियरियन प्ले। द कैरेक्टर्स इन जैकोबियन प्लेज हैड टू डील विद टफ
choices and wanting different things, making the stories even more interesting. Stories को मज़ीद interesting और real बनाने के लिए उन्होंने realistic elements को add किया, उसके साथ साथ जो reality base में जो events होते हैं daily life में उनको add किया, और इस तरह से जो एलिजाबेथन पीरियड में चल रहा था उसका influence भी जैकोबियन एरा पे पड़ा. Continental influence. Jacobean drama was influenced by literary traditions from other parts of Europe. Writers looked to Italian and Spanish plays for inspiration, bringing fresh themes and theatrical techniques to the English stage. These influences contributed to the diversity of Jacobean plays. अच्छा, इसमें जो है राइटर्स ने इटालियन और स्पेनिश प्लेस पे भी काफ़ी इंस्पायर है और उनकी थीम्स और थिएट्रिकल टेक्निक्स को जैकोबियन एरा में लेके आए. ठीक है, और इससे जो जैकोबियन प्लेस में डाइवर्सिटी आई, डिफरेंट काइंड्स और पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर किया गया, जिसमें लव था, ऑनर था, पॉलिटिकल इंट्रिग था, और इसका जो कॉन्टिनेंटल स्टाइल का इम्पैक्ट जो है वो ट्रेजिडी की तरफ लेके गया, कॉमेडी की तरफ, और जिसे हम ट्रेजिक कॉमेडी की भी कहते हैं, जो कि जैकोबियन एरा की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पे बनी. ठीक है, सो द इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी. जैकोबियन एरा का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? Jacobean literature reflected the political tensions and anxieties of the era, highlighting the struggles of power, religious conflicts and social unrest. Jacobean era में ना political tensions थी, anxieties थी तो literature में भी वही impact. The theatre and literature provided a means of entertainment and escape as well as platform for social critique and commentary on society of the time. इसमें no doubt कि एक tragedy तो थी, लेकिन entertainment भी audience को देखने को मिला, एक platform भी मिला social critique को कि वो उस time की जो society थी उस पे criticism कर सकें. Okay, next we have comparative analysis. Contrast with Elizabethan era. In contrast to the Elizabethan era, the Jacobean period marked a noticeable change in the tone of plays. Plays में noticeable change आया. ठीक है, back in the time of Queen Elizabeth, the plays were usually more hopeful, but in the Jacobean era, that came after, the stories became deeper and sometimes gloomier. This change happened because the world was going through a lot of problems, like not having a steady government and not being sure what's right or wrong. These issues became important parts of stories told on stage during that time. अच्छा, जो एलिजाबेथन था ना उसमें होपफुल थी एक लोगों में, और वो काफ़ी एम्बिशियस थे, लेकिन जो जैकोबियन एरा आया तो इसमें गवर्नमेंट में फ्लक्चुएशंस आई और लॉट ऑफ प्रॉब्लम जो थी वो गवर्नमेंट को फेस डाउन करनी पड़ी. उन्होंने इस इश्यूज की वजह से जो लिटरेचर उस वक्त प्रोड्यूस हुआ वो सोसाइटी में जो चल रहा था और लिटरेचर में वही चीज़ें राइट डाउन हुई हमारे पास. सो नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी. अब ट्रेजिक कॉमेडी वी ऑलरेडी नो कि ट्रेजिडी प्लस कॉमेडी. ट्रेजी कहते हैं सॉरोफुल सैडनेस को, और कॉमेडी कहते हैं हैप्पीनेस और प्लेजर को, राइट. सो वी विल से दैट अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग द जैकोबियन एरा वाज द इमर्जेंस ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी एज अ डिस्टिंक्ट जॉनरा. Tragic comedies were stories that mixed serious and funny parts in a way that was different from usual rules of drama. अच्छा, जो मेन चीज़ जैकोबियन एरा में आई जो एलिजाबेथन एरा में नहीं थी वो ट्रेजिक कॉमेडी थी. इसमें यह था कि सीरियस और जो फनी पार्ट्स थे ना उनको मिक्स डाउन किया गया और एक डिफरेंट वे में एक लिटरेचर को प्रोड्यूस किया गया, ऑडियंस के सामने रखा गया, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ ऑडियंस में. दिस न्यू काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द जैकोबियन एरा बिकॉज people wanted more interesting and complicated stories that had both serious and fun moments. और जो लोग थे उनका काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हुआ जो कि चाहते थे कि सीरियस और फन मोमेंट्स उनको एक साथ मिलें, तो ट्रेजिक कॉमेडी को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली जैकोबियन एरा में. नेक्स्ट वी हैव सिग्निफिकेंस. एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन नेचर. The literature of Jacobean era delved deeper into the complexity of human nature, presenting morally ambiguous characters and exploring the darker aspects of the human psyche. इसमें human psyche के aspects को explore किया गया, human की nature को explore किया गया. ठीक है, जैकोबियन एरा में, और इसके साथ साथ political और social और जो cultural climate जो उस टाइम में चल रहा था वो भी literature में काफ़ी impactful हुआ. So this is all about the today's lecture. If you guys like this video, please subscribe to the channel and press the bell icon for getting further updates. Thank you.